Okay, so friends, I welcome you again in today's lecture. And in our last class, we discussed the definition of company, some characteristics of company, and now we'll continue from there itself. ओके एक बार रिवाइज करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी और हमने देखा था इट इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन there are two types of person, natural person and artificial person. So company is an artificial person which is created by law. It is separate from its member, so separate legal entity. A company is a separate legal entity which is separate and distinct from its members. In this heading we discussed one case, that is Solomon versus Solomon and Company, in detail. Then perpetual existence. Perpetual existence means companies कंपनीज कंटिन्यू रहती हैं। वो कंपनी में शेयर होल्डर्स के डेथ होने से या शेयर होल्डर के आने जाने से उनके एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी कंटिन्यूज फॉर एवर अनलेस अंटिल वी क्लोज such companies by following legal process. So a company can be created only by following a legal process, and a company can be dissolved only by following a legal process. Otherwise companies continue to be in force. Then fifth characteristics of common seal. Common seal means what? A company is an artificial person. You all know that company is an artificial person, and because company is an artificial person, so company is an artificial person, so company cannot sign. So the problem is company is an artificial person, hence why company can't sign on legal documents. On legal documents. So what is the remedy? Because company is an artificial person, on legal documents company cannot sign. So what is the solution? समझ गए? Yes, sir. और कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट है वो उसके लिए जो पर्सन है वो पर्सन बाउंड होता है ओनली व्हेन ही पुट सिग्नेचर। तो सिग्नेचर के बाद जैसे कोई एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट पे यहाँ लास्ट में क्रिएटर के साइन होंगे ना, या कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट है, सपोज अपॉइंटमेंट लेटर है किसी एम्प्लॉय का, वट एवर इट इज, इफ इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट देन सिग्नेचर्स आर रिक्वायर्ड. Because company is an artificial person, company cannot sign. Although on behalf of company, directors and managers or other responsible persons can sign, but company, all contracts are entered in the name of company, and because company cannot sign, so the solution is the common seal. Common seal means it is a rubber stamp, simple rubber stamp. So a company can, all companies have a common seal, and that common seal is affixed on all the legal documents wherever it is required. जहां भी जरूरत होती है कंपनी के सिग्नेचर की वहां पे कॉमन सील अफिक्स करते हैं. कॉमन सील किसकी कस्टडी में रहेगी, कॉमन सील किन डॉक्यूमेंट्स पे लगाई जाएगी, इनके रूल्स, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कॉमन सील के यूज के, कस्टडी के, उसे अफिक्स करने के, किन डॉक्यूमेंट्स पे अफिक्स की जाएगी, कब कब की जाएगी, वो सारे रूल्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनीज मेंशन करती है. क्लियर है? तो सभी को समझ में आता है व्हाट इज कॉमन सील? Yes, sir. Okay. Then limited liability. In case of company, companies are of two types. One is limited by shares or limited by guarantee. So in case of, there are two types of limitation on companies liability. This is a very unique feature of companies, because एक बात आप सभी समझते हैं, जैसे एक पार्टनरशिप फर्म है, there is one partnership firm, and in this partnership firm, suppose there are four partners, 1 2 3 4, these four partners, and these three are, this firm has become insolvent, or these three are absconding. Absconding means they are not available. Clear? And the liability is 1 crore rupees. फर्म के ऊपर 1 करोड़ की लाइबिलिटी है. ये चार पार्टनर हैं, ABCD. क्वेश्चन है, क्या ये डी पार्टनर से पूरा 1 करोड़ रुपीस रिकवर किया जा सकता है इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म? यस, किया जा सकता है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के केस में जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की, दिस इज अनलिमिटेड लाइबिलिटीज. ऑल पार्टनर्स आर इंडिविजुअली एंड जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल टू पे ऑल द ड्यूज ऑफ द फर्म. तो ये जो लाइबिलिटी है ये कैसी होती है पार्टनरशिप फर्म की? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है. लेकिन अगर कंपनी के केस में,
ये एक कंपनी है और कंपनी में 1,00,000 शेयर होल्डर्स हैं। 1,00,000 शेयर होल्डर्स हैं। कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी हो जाती है 100 करोड़ की। कंपनी के ऊपर 100 करोड़ की लाइबिलिटी हो जाती है, यानी कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है। कंपनी के एसेट से लाइबिलिटी ज़्यादा है। जैसे कंपनी की यहाँ बैलेंस शीट बनाई तो उस बैलेंस शीट में कंपनी की असेट्स हैं 100 करोड़ की और लाइबिलिटीज़ हैं 200 करोड़ की, यानी असेट से लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं 100 करोड़, तो कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई। क्वेश्चन ये आया, एक शेयर होल्डर है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने 100 शेयर परचेज किए हैं, 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10। तो कितने हुए? 1,000 रुपए के शेयर्स हुए और इन्होंने इस 1,000 रुपए में से पेड, सपोज 900 रुपीज ही हैज पेड, ओनली आउटस्टैंडिंग इज 100 रुपीज इज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज 100। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये जो कंपनी है इस कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी कितनी है? बताओ सभी लोग, लाइबिलिटी कितनी है? 100 करोड़। बोलो ना। यस, बोलो। You need to respond, at least I must know whether you are getting or not. कितनी लाइबिलिटी है इस कंपनी पे? 100 करोड़। वेरी गुड, 100 करोड़ की लाइबिलिटी है। ठीक है, लेकिन ये जो मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स ने कितने शेयर परचेज किए? इन्होंने 1,000 रुपीज के शेयर परचेज किए और 900 पे कर दिया। क्वेश्चन ये राइज हुआ, मिस्टर एक्स से कितना रिकवर किया जा सकता है इफ दिस कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स? इस कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड थी शेयर्स से, तो क्वेश्चन ये राइज हुआ कितना रिकवर किया जा सकता है? तो इनसे कितना किया जा सकता है? जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, वॉट एवर इज द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, दैट मीन्स इनसे मैक्सिमम रिकवर कितना किया जा सकता है? ओनली 100 रुपीज। 100। समझ गए? चाहे कंपनी में 100 करोड़ की लाइबिलिटी है, लेकिन इनसे कितना रिकवर किया जा सकता है? 100। क्लियर है? इसे कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। Yes, sir. ये जो लाइबिलिटी होती है ये दो तरह से लिमिटेड होती है, अभी हम टाइप्स ऑफ कंपनीज में देखेंगे। लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। ये जो लाइबिलिटी होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, तो हमने जो एग्जांपल दिया ये लिमिटेड बाय शेयर्स था। एक और कंपनीज होती हैं जो जनरली चैरिटेबल कंपनीज होती हैं, जैसे मोहन बागान क्लब है, ऐसी कंपनीज होती हैं, वहाँ शेयर होल्डर्स या मेंबर्स गारंटी देते हैं। तो वो ये गारंटी देते हैं, गारंटी किस बात की? इन केस ऑफ वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, इफ कंपनी बिकम्स इंसॉल्वेंट, देन आई प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ रुपीज वट एवर, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, वट एवर। तो जैसे ये मान लो लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी थी और मिस्टर एक्स थे, मिस्टर एक्स ने गारंटी दी थी, मिस्टर एक्स ने 1,00,000 रुपए की गारंटी दी थी। ठीक है, ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी थी और मिस्टर एक्स ने गारंटी कितनी दी थी? 1 लाख की। तो मिस्टर एक्स से कितना मैक्सिमम रिकवर किया जा सकता है? 1 लाख रुपीज, जितना इन्होंने गारंटी दी थी। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, एक और मिस्टर वाई थे, मिस्टर वाई ने गारंटी दी थी 2 लाख रुपीज की, तो मिस्टर वाई से कितना रिकवर कर सकते हैं? ओनली 2 लाख रुपीज। समझ गए? तो लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा, जैसे यहाँ 1 लाख रुपीज था, तो जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उतना ही रिकवर कर सकते हैं इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, और लिमिटेड बाय गारंटी में जितना गारंटी दी थी उतना ही रिकवर कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कंपनी का। तो आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स बनते हैं तो आपकी लाइबिलिटी उतनी ही है जितना शेयर पे आउटस्टैंडिंग। और अगर किसी ने पूरा पे कर दिया अमाउंट, इफ एनी शेयर होल्डर हैज पेड फुल अमाउंट, देयर इज नो आउटस्टैंडिंग ऑन हिम, then he is not liable for even a single penny। समझ गए? एक और शेयर होल्डर थे, मान लेते हैं मिस्टर वाई। मिस्टर वाई के पास भी 1,000 रुपए के शेयर्स थे और इन्होंने जो पे किया था, पेड, ये पूरा 1,000 रुपए इन्होंने पे कर दिया था। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना था? निल। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट निल था, तो इनके ऊपर कितना पैसा इनसे लिया जा सकता है? तो इनसे कोई भी पैसा नहीं लिया जा सकता। समझ गए? इनकी कोई लायबिलिटी नहीं। क्लियर है? Yes, sir. ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट फीचर इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। दैट मीन्स इन केस ऑफ कंपनी, शेयर्स आर ट्रांसफरेबल। यू मे ट्रांसफर योर शेयर्स टू अनदर पर्सन। किसी और पर्सन को आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कुछ रिस्ट्रिक्शन रहती हैं, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती।
तो देखते हैं, देखो जैसे फर्म है, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्या पार्टनर्स अपना शेयर किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स? No, sir. No, they cannot transfer. Partners cannot transfer their shares to another partner without consent of all the shareholders. तो अगर फर्म में एक मिस्टर ए हैं, वो अपना शेयर ट्रांसफर करना चाहें तो उन्हें सबकी परमिशन लेनी पड़ेगी। क्लियर है? अब देखते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कुछ रिस्ट्रिक्शंस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होते हैं। उन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हुए ये क्या कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स ट्रांसफर कर सकते हैं अपना, अपने जो शेयर्स हैं वो किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, वो पार्टनरशिप फॉर्म ऑथराइज है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस पुट कर सकते हैं। क्लियर, समझ गए? और थर्ड केस होता है Yes, sir. पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, in case of public limited company, transferability is public limited company. In case of public limited company, transferability is free. Free means freely transfer. Shareholders can freely transfer their shares. और freely कहाँ के थ्रू कर सकते हैं? स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू फ्रीली ट्रांसफर। और जनरली पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में डील होते हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू दे में ट्रांसफर। जैसे आपके पास रिलायंस इंडिया लिमिटेड के शेयर्स हैं, आरआईएल के शेयर्स हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो आरआईएल के शेयर्स हैं और आप स्टॉक मार्केट के थ्रू सेल करते हैं, तो क्या आपको डायरेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है या डायरेक्ट सेल कर सकते हैं? बताओ। डायरेक्ट सेल डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। देयर इज नो परमिशन, परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू टेक परमिशन फ्रॉम द कंपनी, सो यू मे सेल डायरेक्टली। क्लियर? तो फ्री ट्रांसफरेबिलिटी होती है। तो कंपनी का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो ट्रांसफरेबिलिटी होती है वो फ्री होती है। ये भी समझ में आती है बात? बताओ ना। Yes, sir. ओके, गुड। नाउ सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी क्या होता है, ध्यान से देखो, देखते हैं। जैसे आपके कॉलेज के सामने आपके पास मारुति उद्योग लिमिटेड MUL के मान लेते हैं 10% शेयर्स है। आप 10% शेयर्स के ओनर हो। ध्यान से देखना, आपके पास कितने शेयर है मारुति उद्योग लिमिटेड के? 10% शेयर है, यानी कंपनी के 10% के आप मालिक हो। ठीक है ना? अब क्या हुआ कि आपने देखा कि आपके घर के सामने से एक लॉरी है, वो लॉरी जा रही है और उस लॉरी में, ये एक लॉरी है मान लेते हैं, ये टायर्स हैं, ये लॉरी है और इस लॉरी में क्या है, इस लॉरी में 10 कार्स हैं लोड। ऐसे करके टोटल कार्स कितनी है? 10 कार्स है ना? स्विफ्ट डिजायर कोई भी कार है, वो 10 कार्स हैं। तो आपने कहा 10 कार है, आपने लॉरी को रोका और कहा कि देखो मैं 10% का ओनर हूं, है ना, मैं 10% का ओनर हूं, कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट दिखाया और ये कहा कि एक कार को उतार दो नीचे क्योंकि हम ओनर हैं 10% के। 10% के ओनर हैं तो हर प्रॉपर्टी के हम 10% के ओनर हो गए। ओनर हो गए तो एक कार उतारो हमारे लिए क्योंकि हम ओनर हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? बताओ। ओनर होने का क्या ये मतलब है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को अपने घर ला सकते हैं, 10% प्रॉपर्टी को? No, sir. No, no. Ownership doesn't mean that you become owner of every property. If you are owner of 10% in any company, that doesn't mean you are the owner of every property. Clear? तो ऐसा नहीं होता। तो ये देखो सेपरेट प्रॉपर्टी, यानी जो कंपनी है वो अलग है और कंपनी की जो प्रॉपर्टीज है वो सेपरेट हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है? वो कंपनी की प्रॉपर्टीज हैं। By purchasing 10% shares, you get some rights and some liabilities. कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, कुछ आपके राइट्स होते हैं। जैसे आपको वोटिंग राइट मिलता है, आपको डिविडेंड का राइट मिलता है, बहुत सारे राइट्स होते हैं। कंपनी की मीटिंग में पार्टिसिपेशन का राइट मिलता है, वोटिंग राइट मिलता है। ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं जो हम पढ़ेंगे। आपको कई सारे राइट्स मिलते हैं। यू गेट सेवरल राइट्स by becoming owner of a company. If you become owner of a company, then you get some rights, but that doesn't mean you become owner of every asset of that company. Clear? In proportion to the shares you bought. समझ गए? तो सेपरेट प्रॉपर्टी होती है कंपनी में। सारी प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं है कि आप ओनर हो गए सारी प्रॉपर्टी के। क्लियर? सेकंड, नेक्स्ट 9th पॉइंट इज डेलीगेटेड मैनेजमेंट। डेलीगेटेड मैनेजमेंट
डेलीगेटेड मैनेजमेंट, दिस पॉइंट क्लियर। डेलीगेटेड मैनेजमेंट मीन्स देखो एक कंपनी है, उस कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं वो 10 लाख शेयर होल्डर्स हैं, 10 लाख। क्या ये पॉसिबल है कि ये सारे 10 लाख शेयर होल्डर्स हैं, वो शेयर होल्डर्स सारे 10 लाख कंपनी का मैनेजमेंट करें, कंपनी को मैनेज करें? इज दिस पॉसिबल? बताओ। क्या ये पॉसिबल है? नो सर। यशी, अभिषेक सिकरवार, अतुल, हर्ष, मोमिन, रक्षित, all of you need to open your No sir. unmute your mic. No sir. अगर आप म्यूट किया माइक किसी ने तो आई विल डिसअलाउ, ठीक है? योर एंट्री आई विल डिसअलाउ। देखते हैं। तो ये जो कंपनी है इसमें अगर 10 लाख शेयर होल्डर्स हैं, तो ये जो 10 लाख शेयर होल्डर्स हैं, क्या ये 10 लाख शेयर होल्डर्स सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैनेजमेंट में? नो सर। No sir. कर No sir. सकते। So what they No do? sir. So what they do, they appoint their representatives, and their representatives are called as board of directors. Board of directors. Individually they are called as directors, and collectively they are called as board of directors. तो board of director में अगर 4 पर्सन हैं, अगर 4 लोग हैं मान लेते हैं, तो ये जो 4 लोग हैं, ये 4 लोग इंडिविजुअली इन्हें क्या बोलेंगे? इंडिविजुअली बोलेंगे डायरेक्टर, इंडिविजुअली बोलेंगे डायरेक्टर, क्लियर? डायरेक्टर। और जब ये मीटिंग में बैठेंगे और जब ये लोग कंपोजिट राउंड टेबल पे बैठेंगे मीटिंग में, तो कंपोजिटली इन्हें क्या बोलेंगे? कंपोजिटली इन्हें बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्लियर है? तो शेयर होल्डर्स Yes, क्या sir. करते हैं? ऑल शेयर होल्डर्स, ये जो 10 लाख थे, 10 लाख तो कौन थे? शेयर होल्डर्स थे। ये जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स व्हाट दे डू, shareholders delegate their powers to the board of directors, clear? और फिर जो सारा मैनेजमेंट है, सारी अथॉरिटीज है, वो किसे मिलती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्हाट दे डू, दे अपॉइंट वन एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, और he may be called as CEO, chief executive officer, or president, whatever name called, और गवर्नर, और एनी नेम, और जनरल मैनेजर, क्लियर? एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट करते हैं। डे टू डे जो रूटीन ऑपरेशन होते हैं कंपनी के, रूटीन ऑपरेशन हु लुक्स आफ्टर? दिस एमडी और सीईओ और प्रेसिडेंट लुक्स आफ्टर द डे टू डे ऑपरेशंस, क्लियर? ठीक है? Yes sir. Okay, good. So delegated management is clear, and then capacity to sue. Capacity to sue means a company can sue or can be sued in its own name. यानी एक जो कंपनी है, कंपनी के ऊपर केस फाइल किया जा सकता है कंपनी के नाम से। जैसे टाटा मोटर्स से अगर आपका डिस्प्यूट है तो आप टाटा मोटर्स के ऊपर केस कर सकते हैं, डायरेक्टर के ऊपर नहीं, टाटा मोटर्स कंपनी के ऊपर। तो कंपनी के ऊपर भी केस फाइल हो सकता है और कंपनी भी केस फाइल कर सकती है, किसी और पर्सन पे कंपनी भी केस फाइल कर सकती है। तो मेंबर्स भी कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, कंपनी भी केस फाइल कर सकती है, ठीक है? देयर आर 2 टर्म्स, 2 टर्म्स होते हैं। अगर सिविल नेचर का मैटर होता है, डिस्प्यूट, कोर्ट में कंप्लेंट होती है, तो उसे हम बोलते हैं सूट, सिविल नेचर का होता है तो, क्लियर? और क्रिमिनल नेचर का होता है तो उसे बोलते हैं हम केस। कहते हैं ना उसने केस फाइल कर दिया, तो अगर क्रिमिनल नेचर का होता है तो बोलते हैं केस, और सिविल नेचर का होता है तो सूट। जैसे 2 लोगों में प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है तो क्या बोलेंगे? देयर इज अ सूट बिटवीन 2 पीपल, 2 पर्सन, समझ गए? तो Yes. कंपनी भी सूट फाइल कर Yes, सकती है और कंपनी के ऊपर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टर्मिनेशन और डेथ। क्या नेचुरल पर्सन की तरह कंपनी की डेथ हो सकती है? क्या नेचुरल पर्सन की तरह कंपनी की डेथ हो सकती है क्या? No sir. नहीं, कंपनी इज एन No, आर्टिफिशियल sir. पर्सन, लिखा भी हुआ है देखो, बिकॉज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट डज नॉट हैव नेचुरल डेथ, तो वो नेचुरल डेथ नहीं होती। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट इज डिसॉल्व्ड बाय लॉ। A company is created by following a legal process and company is also dissolved by following a legal process, clear? और it has nationality, कंपनी की nationality होती है, जैसे इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, हम कहते हैं ना कि वो इंडियन कंपनी है और फॉरेन कंपनी है।
तो जो इंडियन कंपनीज कौन सी होती हैं? जो इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, जो कंपनीज इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर होती हैं उन्हें बोलते हैं इंडियन कंपनीज। क्लियर? और जो फॉरेन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर होती है उन्हें बोलते हैं फॉरेन कंपनी। अभी हम डिफरेंशिएशन देखेंगे। क्लियर है? तो इंडियन कंपनीज कौन सी होती हैं? इंडियन कंपनीज आर दोज कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट। इंडियन कंपनीज एक्ट। क्लियर? तो जो इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर होती हैं वो कंपनीज को हम बोलते हैं इंडियन कंपनीज। क्लियर? और जो फॉरेन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर होती है उन्हें बोलते हैं फॉरेन कंपनी। क्लियर है? एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक Yes, इज sir. नो सिटीजनशिप एंड नो फंडामेंटल राइट्स। तो जो कंपनी होती है वो क्या सिटीजन होती है? क्या क्या No, भारत की sir. नागरिक होती है? सिटीजन होगी तो उसे वोटिंग राइट No, मिलेंगे, बहुत सारे sir. राइट मिलेंगे, फिर मैरिज का राइट भी मिलेगा, सारे राइट्स मिलेंगे। तो सिटीजन नहीं होती कंपनी और उसे कोई फंडामेंटल राइट्स भी नहीं होते। जैसे हमें होते हैं ना फंडामेंटल राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 30, वी ऑल पीपल ऑफ इंडिया गेट फंडामेंटल राइट्स। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 है, जैसे आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, तो ऐसे अलग अलग राइट्स हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो ह्यूमन बींग्स को होते हैं, सिटीजन्स को होते हैं। ऐसे फंडामेंटल राइट कोई कंपनी को नहीं होते और कंपनी सिटीजन भी नहीं होती है। ये बात समझ में आती है सभी को? क्लियर? एक आपके पास असाइनमेंट Yes, sir. रहेगा, एक आपके पास असाइनमेंट रहेगा, वो हम नहीं कराएंगे, आप करोगे। अभी सभी लोग नोट कर लो, डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। Distinction between company and partnership. This is your assignment number 1. Clear? Distinction between company and Okay, sir. partnership firm. ये आपको बुक में, सभी बुक्स में, सभी जगह मिल जाएगा। और वहां से आप एक अच्छे से टेबल बनाएंगे, टेबुलर फॉर्म में करेंगे। और टेबुलर फॉर्म में आप बनाएंगे पॉइंट ऑफ डिफरेंस, सीरियल नंबर, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, देन कंपनी एंड पार्टनरशिप फॉर्म। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। अभी हाउ मच टाइम वी हैव? Types of companies. 10 minutes. 10 minutes more here. Okay. So types of companies start करते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनीज एक बार देखते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनीज हम अलग अलग तरह से देखेंगे, कई सारे तरह से देखेंगे। तो देखो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो जो पहला क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे है? दिस इज ऑन मोड ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लियर? Yes, sir. मोड ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो मोड ऑफ क्लासिफिकेशन के बेसिस पे कितनी कंपनीज? मोड ऑफ क्लासिफिकेशन के बेसिस पे 3 तरह की कंपनीज होंगी। कौन कौन सी कंपनी होंगी? फर्स्ट इज चार्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। चार्टर्ड कंपनी कौन सी होती है? ऐसी कंपनीज जो किसी कॉलोनाइजेशन के लिए और किसी कंट्री को कॉन्कर करने के लिए क्रिएट की जाती हैं, ऐसी कंपनीज को हम बोलते हैं चार्टर्ड कंपनी। नाउ डेज दे आर नॉट पॉसिबल, इट इज ओनली अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। क्लियर? जैसे आपको याद होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी याद है? Yes. क्लियर? ईस्ट इंडिया कंपनी, Britishers formed that East India Company. It came in India for business purpose, and thereafter they captured India. They also organized and formed their army. They fought battles, and then they started ruling the country. Clear? तो वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ऐसी कंपनीज, चार्टर्ड कंपनीज जो किसी चार्टर के अकॉर्डिंग बनाया जाता है किसी कंट्री के, तो वो कंपनीज अब नो लॉन्गर एग्जिस्ट। कोई भी कंट्री ऐसी कंपनी को अलाउ करेगा अपनी कंट्री में जो अपनी आर्मी भी बना सकती है? No, sir. नो। तो ये थ्योरेटिकल No, कंसेप्ट है। sir. वेरी गुड, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट डिवीजन इज स्टैट्यूटरी कंपनीज। सो व्हाट आर स्टैट्यूटरी कंपनीज? स्टैट्यूटरी कंपनीज आर दोज कंपनीज व्हिच आर फॉर्म्ड बाय पासिंग अ सेपरेट एक्ट इन द पार्लियामेंट। कौन सी कंपनीज? ऐसी कंपनीज जिनके लिए देखो स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, दे आर फॉर्म्ड बाय पासिंग अ सेपरेट एक्ट। ऐसी कंपनीज जिनके लिए एक सेपरेट एक्ट बनाया जाता है। क्लियर? तो सेपरेट एक्ट पार्लियामेंट बनाती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है। जैसे देखो एग्जांपल, एलआईसी एक्ट है ना, पार्लियामेंट ने बनाया हुआ एलआईसी एक्ट, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। जैसे यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई,
जैसे एसबीआई, ये इन सबके सेपरेट एक्ट्स हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, जैसे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, जैसे आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इस तरह की जो कंपनीज हैं, ये कंपनीज क्योंकि इनके लिए सेपरेट एक्ट बनाया जाता है, तो क्योंकि इनके लिए सेपरेट एक्ट बनाया जाता है, तो इनके ऊपर प्रोविजंस कौन से अप्लाई होते हैं? कौन से प्रोविजंस अप्लाई होते हैं? जो एक्ट में दिए होते हैं। इनके सेपरेट एक्ट में जो प्रोविजन दिए होते हैं वो प्रोविजन से गवर्न होती है। लेकिन अगर इनका कोई प्रोविजन साइलेंट होता है, कहीं पे कोई किसी इशू के लिए इनका जो प्रोविजन है वो प्रोविजन साइलेंट है, वो कुछ भी साइलेंट है, तो अगर वो प्रोविजन साइलेंट है तो फिर क्या होता है? अगर कोई प्रोविजन किसी इशू पे साइलेंट है तो फिर जैसे ऑडिटर के अपॉइंटमेंट पे अगर प्रोविजन साइलेंट है तो फिर कौन सा एक्ट अप्लाई होगा? तो फिर इंडियन कंपनीज एक्ट ही अप्लाई होगा। क्लियर? तो फिर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 ही अप्लाई होगा। समझ गए? जहां तक इनके एक्ट में क्लियर प्रोविजंस है वहां तक इन्हीं का इंडिविजुअल एक्ट अप्लाई होगा, और अगर इनके प्रोविजन किसी इशू पे साइलेंट हैं, वो कोई प्रोवाइड नहीं करते कुछ भी, तो फिर कौन सा एक्ट अप्लाई होगा? तो फिर इंडियन कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा। ये बात समझ गए? Yes, sir. क्लियर? क्लियर? यस सर। नेक्स्ट और थर्ड देखते हैं, सी Yes, रजिस्टर्ड sir. और इनकॉर्पोरेटेड। ओके, रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, ये मैक्सिमम कंपनीज होती हैं। रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज ये वो कंपनीज होती हैं जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर होती हैं। तो मैक्सिमम जो हम कंपनीज के टच में होते हैं वो कौन सी होती हैं? वो या किसी प्रीवियस कंपनीज एक्ट में, जैसे 2013 से पहले 1956 का कंपनीज एक्ट था, उससे पहले का भी 2033 का था, ऐसे और प्रीवियस कंपनीज एक्ट थे। तो या तो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 या फिर प्रीवियस कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो फॉर्म हुई हैं, ऐसी कंपनीज को बोलते हैं रजिस्टर्ड कंपनीज। तो हमें जो डिस्कशन करना है वो मैक्सिमम डिस्कशन हमें किन कंपनीज का करना है? रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज का ही डिस्कशन करना है। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। तो लायबिलिटी के बेसिस पे कंपनीज कितने तरह की होती हैं? हमने डिस्कस किया अभी, 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है लिमिटेड बाय लायबिलिटी के बेसिस पे। अगर हम डिफरेंशिएशन करना चाहें तो लायबिलिटी के बेसिस पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज। लिमिटेड बाय शेयर्स, second limited by guarantee, Guarantee. TEE, okay, and third unlimited. अनलिमिटेड कंपनीज। क्लियर? लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनीज। तो देखते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स कौन सी कंपनीज होती हैं? Any company is called as limited by shares if the liability of its shareholders is limited up to the unpaid amount on shares। यानी ऐसी कंपनी जिसके शेयर होल्डर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। कहां तक लिमिटेड है? अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। शेयर्स पे जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट रह गया, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस अमाउंट तक अगर लिमिटेड है लाइबिलिटी तो उसे बोलते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स। सेकेंड, लिमिटेड बाय गारंटी। तो अगर किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स ने गारंटी दी है तो लायबिलिटी कितनी? लायबिलिटी अप टू द अमाउंट, अप टू द गारंटी अंडरटेकन बाय द इंडिविजुअल शेयर होल्डर। तो जैसे एक मिस्टर ए हैं, उन्होंने कंपनी में गारंटी दी 1 लाख की, मिस्टर वाई हैं, इन्होंने गारंटी दी 2 लाख की। तो जिसने जितनी गारंटी दी उतने ही तक उनकी लायबिलिटी है। वो भी कब? ये जो पैसा है इनसे कब मांगा जाएगा? 2 कंडीशन पूरी हो। एक, कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा हो, यानी कंपनी वाइंड अप हो रही हो, और दूसरा कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई हो। कंपनी क्या हो गई हो? इंसॉल्वेंट हो गई हो। दोनों बातें अगर हो रही होंगी, कंपनी लिक्विडेशन यानी कंपनी बंद हो रही है और कंपनी इंसॉल्वेंट है, तो पैसा शॉर्ट पड़ेगा। इंसॉल्वेंसी में पैसा शॉर्ट है, और पैसा शॉर्ट है तो पैसा मांगा जाएगा क्रेडिटर्स को देने के लिए, आउटसाइड लायबिलिटीज को देने के लिए। तो वो पैसा किस किस से कितना मांगा जाएगा? तो जिसने जितनी गारंटी दी उतना पैसा मांगा जाएगा। समझ गए? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। फिर देखते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है। अनलिमिटेड कंपनीज भी क्या है? दिस इज ऑल्सो अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट ओनली, नॉट पॉसिबल
in practical life. तो प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। क्लियर? ये कंपनीज ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में इनका एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसी कंपनी का कोई शेयर होल्डर बनना चाहेगा जिसकी लायबिलिटी शेयर होल्डर्स की अनलिमिटेड है? बताओ। जैसे अगर आप एक अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के मेंबर हैं और कंपनी के ऊपर 100 करोड़ रुपए की लायबिलिटी हो गई और आपने केवल 1000 रुपए के शेयर परचेज किए थे, तो भी आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? आपने केवल 1000 रुपए के शेयर परचेज किए थे तो भी आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 100 करोड़ रुपए। तो कोई ऐसी कंपनी का मेंबर बनना चाहेगा? बताओ। नो सर। नहीं बनना, वेरी गुड, नहीं बनना चाहेगा इसमें। ठीक है, तो ये 3 हमने कंपनीज देखी। आज हम इतना ही रखते हैं क्योंकि टाइम इज आल्सो रनिंग आउट। ओके, तो अनलिमिटेड कंपनीज तक देखा। नेक्स्ट डिवीजन देखेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वन पर्सन कंपनी, है ना, और डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल देखेंगे, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएटेड कंपनीज, ऐसे करके और भी डिविजन्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई थिंक कल ही होगा लेक्चर, तो कल देखेंगे। क्लियर है? कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क। नो सर। नो सर। ओके, सो अभी तक का क्लियर है सभी? यस सर। ठीक है फ्रेंड्स। ओके, वेरी गुड। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर